السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، اگست کی 23 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج چکے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ بھارت کی چاند گاڑی چندریان 3 کامیابی سے چاند کی اتر گئی ہے۔ امریکہ، روس اور چین کے بعد بھارت چاند پر پہنچنے والا دنیا کا چوتھا ملک بن گیا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن کے چندریان 3 اسپیس کرافٹ نے بدھ کو بھارت کے مقامی وقت کے مطابق شام 6:04 پر چاند پر سافٹ لینڈنگ کی۔ بھارت کے چندریان 3 کی لانچنگ 14 جولائی سن 2023 کو ہوئی تھی۔ چاند کے مدار میں داخل ہونے سے قبل چندریان 3 کئی روز تک زمین کے مدار میں گردش کرتا رہا تھا۔ اس سے پہلے پیر کو روس کا اسی طرح کا ایک مشن لونا 25 چاند پر اترنے کی کوشش کے دوران تباہ ہو گیا تھا۔ اور پاکستان سے خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا ہے کہ بادی النظر میں توشہ خانہ کیس سے متعلق ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں غلطیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود آج ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں مداخلت نہیں کریں گے۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے عاصم علی رانا کے مطابق توشہ خانہ کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی درخواست پر چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے بدھ کو سماعت کی۔ عمران خان نے توشہ خانہ کیس کے قابل سماعت ہونے کا معاملہ ٹرائل کورٹ بھجوانے کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ چیف جسٹس نے بعد ازاں سماعت جمعرات تک کے لیے ملتوی کر دی۔ خیبر پختونخوا کے علاقے بٹاگرام میں دیسی ساختہ کیبل کار میں پھنسے تمام 8 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ کیبل کار میں 7 طالب علم اور 1 استاد سوار تھے، جو ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں معمول کے مطابق جا رہے تھے کہ کیبل کار کی ایک تار ٹوٹنے سے دیسی ساختہ کیبل کار 2 پہاڑوں کے درمیان کافی بلندی پر اٹک گئی تھی، لیکن لگ بھگ 900 فٹ کی بلندی پر پھنسے ان افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے سابقہ قبائلی علاقوں کے قانون فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن کے تحت درج زیر التوا مقدمات کو نمٹانے کے لیے ایف سی ٹرائیبیونل کو بحال کر دیا ہے۔ حکومت نے یہ فیصلہ پشاور ہائی کورٹ کے 2 دسمبر سن 2022 کے فیصلے کے تحت کیا، جس میں 11 اہم نوعیت کے مقدمات کو سابقہ قبائلی علاقوں کے لیے نافذ قانون کے تحت نمٹانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ بھارت کی ریاست میزورام میں ایک ریلوے پل ٹوٹنے سے کم از کم 26 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حادثے کے وقت جائے وقوع پر 28 ورکرز موجود تھے، جن میں سے 2 زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ریلوے انتظامیہ نے پل ٹوٹنے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ انڈین ریلویز نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ حادثہ ایک زیر تعمیر پل پر کام کے دوران پیش آیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ متاثرہ افراد کو ہر ممکن مدد فراہم کی جا رہی ہے۔ طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے پاکستان کی وزارت خارجہ کے انسٹی ٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے ڈائریکٹر سہیل محمود سے ملاقات میں کہا ہے کہ کچھ مسائل دونوں ممالک کے تعلقات میں دراڑ پیدا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح میڈیا پر ہنگامہ آرائی کرنے سے بہتر ہے کہ ان مسائل کی اصل وجوہات کو تلاش کیا جائے۔ وہ کابل میں پاکستان کے ناظم الامور عبید الرحمان نظامانی کے ہمراہ آنے والے وفد سے باتیں کر رہے تھے۔ طالبان کے دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق متقی نے کہا کہ طالبان حکومت پرعزم ہے اور اس بات کی یقین دہانی کراتی ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، اور مزید کہا کہ ہمیں ایک دوسرے کی خیرسگالی پر شک نہیں کرنا چاہیے۔
साउथ अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग में 5 मुल्कों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका पर मुश्तमिल ग्रुप ब्रिक्स के सरबराहों का 3 रोज़ा इजलास जारी है, जिसमें ब्रिक्स में तोसी और बाहमी तिजारत और मालियाती लेन देन में मकामी करेंसी के इस्तेमाल को फरोग देने पर तबादला ख्याल हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रुप में तोसी के सिलसिले में ताहाल बज़ाहिर इख्तिलाफात नजर आते हैं। भारत ने इत्तेफाक राय की बुनियाद पर तोसी की हिमायत की है। सऊदी अरब, ईरान और मिस्र समेत तकरीबन 40 मुल्क ब्रिक्स में शमूलियत चाहते हैं। अमेरिका ने चीन के मजीद हुक्काम पर वीजा पाबंदियां आयद कर दी हैं, जिन पर इल्जाम है कि उन्होंने तिब्बत के लगभग 10 लाख बच्चों को चीनी मुआशरे में जम करने के लिए उन्हें जबरन अपने खानदानों से अलग करके बोर्डिंग स्कूलों में रखा। चीनी हुक्काम पर हालिया पाबंदियों से मुताल्लिक मंगल को एक बयान में अमेरिका के वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका चीन की हुकूमत की जानिब से चलाए जाने वाले बोर्डिंग स्कूलों की पॉलिसी के पीछे मौजूद हुक्काम के वीज़ों को महदूद कर देगा। वाशिंगटन डीसी में चीन के सिफारतखाने के तर्जमान का कहना है कि बीजिंग चीन के हुक्काम के खिलाफ वीज़ा पाबंदियों से मुताल्लिक अमेरिका के इक़दामात की सख्ती से मुखालिफत और मजम्मत करता है। चीनी सिफारतखाने के तर्जमान के मुताबिक बोर्डिंग स्कूल चीन की नस्ली अक़लियती इलाकों में स्कूलों को चलाने का अहम तरीका है। यूक्रेनी हुक्काम ने बुध को कहा कि रूस ने गुज़श्ता रात ओडिशा के इलाके में बंदरगाह के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए फज़ाई हमला किया। हुक्काम ने बताया कि रूस ने दरियाए डैन्यूब पर बंदरगाह पर हमले में ड्रोन का इस्तेमाल किया। इलाकाई गवर्नर ओलेह कीपर ने मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर कहा कि प्रोडक्शन और शिपिंग कॉम्प्लेक्स मुतासर हुए हैं और अनाज को नुकसान पहुंचा है। कीपर ने मजीद कहा कि कोई शहरी जानी नुकसान नहीं हुआ। यूक्रेन के हुक्काम ने मंगल को देर गए कहा था कि रूसी तोपखाने ने मशरकी यूक्रेन के शहर लीमान के करीब 3 अफराद को हलाक कर दिया। उधर रूसी हुक्काम ने बुध को कहा कि यूक्रेन के ड्रोन हमले में दोनों ममालिक की सरहद के साथ वाक़े बेलगोराड के इलाके में 3 अफराद हलाक हो गए। रूस ने यह भी कहा कि रूसी फ़ज़ाई दिफा के जरिए गिराए जाने के बाद यूक्रेन का एक ड्रोन वस्ती मॉस्को में एक इमारत से टकरा गया। मॉस्को के मेयर सरगई सोबियानिन ने कहा कि इमारत ज़ेर तामीर थी और उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि वो यूक्रेन की तरफ से रूस के अंदर हमलों की हिमायत नहीं करता, लेकिन ये फैसला यूक्रेन ही को करना है कि वो अपना दिफा कैसे करे। महकमा खारजा के तर्जमान के मुताबिक रूस यूक्रेन से अपने फौजियों को वापस बुलाकर किसी भी वक्त जंग खत्म कर सकता है। अमेरिका का यह बयान रूसी हुक्काम की जानिब से बुध को यूक्रेन के 3 ड्रोन मार गिराने के दावे के बाद सामने आया है। रूस की वजारत दिफा का कहना है कि यूक्रेन ने 3 ड्रोन से मॉस्को को निशाना बनाने की कोशिश की, जिन्हें दिफाई निज़ाम के जरिए तबाह कर दिया गया। यूक्रेन की जानिब से रूस के इस दावे पर कोई बयान सामने नहीं आया है। व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के मुशीर जेक सलिवन ने कहा है कि अमेरिका को यकीन है कि ईरान उसके 5 शहरियों को आज़ाद कर देगा। ताहम उन्होंने इस मामले की मजीद तफसील नहीं बताई। हाल ही में ये खबर सामने आई थी कि ईरान ने 4 अमरीकी कैदियों को जेल से निकालकर एक महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है, जिन्हें अनकरीब आज़ाद कर दिया जाएगा, जिसके बदले जनूबी कोरिया में ईरान के मुंजमद $6 अरब के असासे वागुजार कर दिए जाएंगे। जेक सलीवन ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि ईरान के साथ जो तय हुआ है, मामलात उसके मुताबिक आगे बढ़ते रहेंगे। जनूबी शाम में मुश्तइल मुजाहिरीन ने हुक्मरां बास पार्टी के मकामी दफातर पर धावा बोल दिया है। यह हमला ऐसे वक्त में किया गया है जब जंगज़दा मुल्क में शदीद माशी और माली बहरान के दौरान हुकूमत के खिलाफ मुजाहरों में शिद्दत आती जा रही है।
हिज़्ब इख्तिलाफ के कारकुनों ने बुध को कहा कि मुजाहिरीन ने मंगल की रात होने वाली हुकूमत मुखालिफ रैलियों में एक हाईवे को भी जुज़वी तौर पर बंद कर दिया जो दो रोज़ अक्सरियत वाले सूबे सौदा को दारुल हुकूमत दमिश्क से मिलाती है। ये मुजाहरे हालात ज़िंदगी की बिगड़ती हुई सूरत हाल और महंगाई की वजह से शुरू हुए हैं। मुजाहरे अभी तक दारुल हुकूमत दमिश्क और हलब और हम्स समेत बड़े शहरों तक नहीं फैले हैं। यूनान के शिमाली इलाके के जंगलात में लगने वाली आग पर काबू पाने के लिए दूसरे रोज भी कोशिशें जारी हैं। हुक्काम ने आतिशज़दगी के बाइस अब तक 20 अफराद की हलाकत की तस्दीक की है। फायर फाइटर्स तैयारों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, ताहम तेज हवाओं और गर्मी की वजह से आग तेजी से दारुल हुकूमत एथेंस की जानिब बढ़ रही है। फायर ब्रिगेड के तर्जमान ने कहा है कि तमाम सिविल इदारे अलर्ट हैं और आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। न्यूज़ प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।